तो फॉर्मल वेलकम। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, आप लोग मुझे जानते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, बट मेरा नाम मीनाक्षी अवस्थी है। मैं प्राणिक हीलर हूँ, पामिस्ट्री पढ़ाती हूँ, टैरो पढ़ाती हूँ और फेस रीडिंग करती हूँ। बट आई ऑलवेज लव टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ लाइक अ प्राणिक हीलिंग। दैट इज माई फर्स्ट पैशन एंड आई एम एक्चुअली pursuing my higher levels in pranic healing, and I am very happy doing that. Tarot again is a very good thing. It always complement my numerology science and prediction way. This is the only prediction science I am using along with the numerology. Otherwise, rest astrology, numerology and graphology is search field. So मेरे लिए यही फील्ड है किसी की प्रिडिक्शन देने के लिए, या पामिस्ट्री है। दो चीजों को मैं मिलाकर जनरली करती हूँ, या पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी को मिलाती हूँ, या टैरो और न्यूमरोलॉजी को मिलाती हूँ। सो ऑलवेज like that. We live in Delhi NCR. We have two offices in Gurgaon and in Noida. Right now, we are completely working from home. Today, I am taking this class from my mother's home. You must be looking at a different backdrop, but next class I will be at my home. So I will start. Would love to hear your introduction, from where you are, what is your name, and what you do as a profession. So let's start with Aloy. Hello everyone. Yeah, my name is Lloyd. I'm into palmistry from a very long time. For the past 12 years, I've been practicing it, not as a profession, but I was doing it as my passion or a hobby, you can say. But for the past 3-4 years, I felt like I should do more into this field. So I learned astrology from Sir, as well as numerology also from Sir. So from there, my journey started with being a professional palmist, as well as a professional astrologer, as well as a numerologist also. So, but few days I was just thinking I should do something more. I should learn something. It's a continuous learning process which is there. And today morning only I saw Sir's status and I said, "Oh, tarot." I said, "This has been thinking for a very long time. Maybe it was my intuition calling or what. I don't know, but it was my instant decision. Yes, I would." Enroll for this today only, because afternoon I started asking certain questions like what is it, where is it, so today I'm here, and apart from this I am working as a senior program manager for a software company. Because I started last year. I took a break in between so I could complete my astrology as well as and all, but from last year onwards I'm working as a senior program manager for a software company. So this is me. So I against everyone. So, great. Yes, Sarla. Good evening, everyone. My name is Sarla. I'm a teacher by profession, and I did signature class from Saurabh sir only, and I was waiting for tarot class from a long time, and this time I thought that it is in the evening and I can do it easily. That's it. So welcome. From where you are, Sarla? I'm born and brought up in Assam, married in Jaipur, and now I'm staying in Gurgaon, Sector 15. Okay, great. And nice. You are, ma'am, your office also is in Gurgaon. Where is it? Cyber City. Okay. I'm a teacher in Gurgaon only, Salwan, if you heard the name of Salwan Public School. Okay. Great. Nice to see you. And Mansi, would you mind please switch on your camera? That will be better. In the meanwhile, Maheshwari. Yeah, hi everyone. This is Maheshwari from Bangalore. I'm also a program manager in an IT company. I have a lot of interest in Vastu and astrology and things. I've been learning different stuff for more than 7 years now and practicing it to a certain level. I have done tarot, like a crash course, but I wanted to learn from ma'am, and probably understand it much more better in a deeper way. So that's why I'm here. Thank you. Welcome. One thing, ma'am, I would like to say, my Didi Ranju, her name is Ranju. She also did tarot from you only, and I booked a seat for her. And she praised you like anything. That is so nice of her. That is so nice of her. Really, thank you. मानसी, आप अगर हैं क्लास में तो प्लीज अपना कैमरा ऑन करके अपना इंट्रोडक्शन भी क्लास को दे दीजिए. Mansi, you there? I think she's on mute. I think. Can you please give minutes? 5 minutes sure. only. No problem. Should we start or wait?
Only ma'am. least. Sorry. I'm so sorry. नहीं, डोंट बी सॉरी। ओके, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन द मीन वाइल लेट्स टॉक मोर। लॉय अपने इंटरेस्ट के बारे में बात कर लेती हूँ, एंड महेश्वरी आपसे भी, आप तीनों से ही बात कर सकती हूँ मैं। सी, सिंस आई एम अ प्राणिक हीलर एंड आई एम Ma'am, I would like to know what is this pranic healing? Okay. Pranic healing is a healing modality and energy healing modality. Like Reiki is very well known term as compared to pranic healing. But pranic healing, बस अगर आप आपको मैं एक sentence में बोलूँ तो pranic healing is the latest version of Reiki, but more developed, more structured school. Okay. Reiki का कोई structured school नहीं है, and pranic healing is a well structured school. We have a head office in Manila, Philippines, and सारे almost 120 कंट्रीज में प्राणिक हीलिंग टीच किया जाता है और प्रैक्टिस किया जाता है। सो like that. So आप लोग जैसे I am like since I said कि I am pursuing my pranic healing higher levels, so I am very much interested in spreading pranic healing also, because many people don't know about that. Yeah. So I would love to do free orientation programs, if online program I can give. So if your company HR department allow me, give me 30 minutes to speak up, so that more and more people can come and join it. हम लोग प्राणिक हीलिंग करना चाहते हैं, आप लोग हीलिंग सीखना चाहते हैं, दैट इज टोटली अपार्ट, पर हम बहुत सारी फ्री चीजें ऑफर करते हैं, लाइक ट्विन हार्ट मेडिटेशन वी एक्सप्लेन, एंड आई ऑल्सो कंडक्ट ट्विन हार्ट मेडिटेशन in the night 9 p.m. I have a certain schedule, anyone can come and join. तो अगर ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी आपको लगती है जिसमें आई कैन कम एंड स्पीक अबाउट द प्राणिक हीलिंग, सो प्लीज डू लेट मी नो। आपके अगर स्कूल में आकर आपके टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए हम लोग सुपर ब्रेन योगा करते हैं, दैट इज अ सुपर like We super are exercise. doing it regularly. We are doing it. Great, great, great. So उसका ओरिएंटेशन, उसके बारे में वो सब भी चीजें हम आके करवाते हैं। तो अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी तो प्लीज डू लेट मी नो। Definitely. ठीक है, जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स, मानसी भी ज्वाइन हो जाए, अदरवाइज शी विल फील लाइक कि हमने स्टार्ट कर दिया और हमने उसका वेट नहीं किया। So anything else? This face reading, what you'll do, ma'am, for face reading? See, face reading is a face profiling basically, and it's a very good science. And जो लोग especially sales में हैं या public dealing करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है। पहले मैंने जो अभी तक जो सेशंस किए थे, वो ज्यादातर सारे लॉन्ग क्लासेस ही थी, लाइक 12-15 क्लासेस वाला कोर्स, बट आई रियलाइज कि लोगों को सब कुछ क्विक चाहिए, तो आई हैड प्लान्ड अ शॉर्ट वाला वर्कशॉप, 3-day वर्कशॉप, जो मेरी अभी सिर्फ एक ही हुई है, और नेक्स्ट मंथ में भी आफ्टर माई एग्जाम आई विल प्लान अनदर वन। सो 3-day वर्कशॉप, उसमें हम क्विकली फटाफट देखकर किसी पर्सन के बारे में क्या पता लगा सकते हैं। अच्छा, ये हमारा सामान खरीदेगा, ये बहुत एनालिटिकल है, इमोशनली सोचेगा, नहीं बहुत एक्सपेक्टेशन है इसकी, तो लाइक these kind of things you will be Sometimes able if a to person is on telephone, so by voice you'll be able because most of the time we do so dealing on phone nowadays. see, for that you need to become a pranic healer, because then only you will be able to come into the aura of the person. आपका हार्ट चक्रा बिगर होगा और आप उसके इमोशंस को ट्रैक कर पाओगे। Okay, so that क्योंकि आजकल ऑफिस भी नहीं ज्यादा होता है, राइट? तो घर पे ही रहते हैं, फोन नहीं, पे ही वीडियो सब कॉल calls विल also- डू, वीडियो कॉल विल डू, Video call also will do, huh? Okay, that's good. वीडियो कॉल डू, फेस रीडिंग यू कैन डू ऑन वीडियो कॉल आल्सो, Okay. है ना? So you can come to know कि whether he have money to spend, whether he has capability to spend, whether he is going to spend or not. इस तरीके की बहुत सारी चीजें क्विक आप पता कर सकते हो। So उसके लिए मैंने एक छोटा सा वो कोर्स प्लान किया, जिसमें से फिर जिनको ज्यादा इंटरेस्ट है, they can always come in a bigger course. So like that. Mansi, you there? Yes, ma'am. Kindly switch on your camera and introduce yourself. We are waiting for you. Hi, ma'am. Actually, I have a night shift, so I just woke up. Or I was taking a bath. So, like, my name is Mansi, and I'm doing job in MNC, and so that's it. I have interest in tarot since a very long time, but I was very occupied with my father. So unfortunately, my father got expired last to last year.
So now I am planning to start a tarot. I have a very much interest in occult science, so that is why I want to join this. Great. From where you are, Mansi? I'm from Delhi. Great, great, great. We cannot see you since your screen is black. Let's start. Okay. So हम सब ने अपना इंट्रोडक्शन कर दिया है. बाकी लोगों से इंट्रोडक्शन लेने के लिए आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी because it's already 15 minutes past. So we will start quickly. So Mansi, I will request you to keep your camera on while taking class. That will be a good idea. So सबसे पहले बात करते हैं कि what is occult? Occult, as name suggests, something hidden, जो कि छुपा हुआ हो, जिसको आपको डीकोड करना हो, वो ऑकल्ट साइंस होती है. ऑकल्ट साइंस बहुत तरीके की होती हैं, जिसमें हम तरह तरह से प्रिडिक्शंस करते हैं. कुछ ऐसी हैं जिसमें इनपुट बेस्ड होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो इंट्यूशन बेस्ड होती हैं. दोनों ही ऑकल्ट हैं, जिसमें भी आप डिकोडिंग करते हैं. इंट्यूशन बेस्ड साइंसेस बेसिकली आप कहते हो कि जो लोग बहुत मेडिटेशन करते हैं या सर्टेन फैकल्टीज को डेवलप करते हैं या जिनका डिवाइन कनेक्शन होता है, गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो लोग इंट्यूशन साइंस करते हैं. पर जितने लोग भी ऑकल्ट करते हैं, उन सबसे ऐसी एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि वो भी इंट्यूटिव हैं और इंट्यूटिव होना ही चाहिए उनको. उसके लिए उनको अपनी स्पिरिचुअल फैकल्टीज को डेवलप करना चाहिए. स्पिरिचुअल जर्नी को अगर आप अपनी ऑकल्ट जर्नी के साथ साथ चलाते हो तो यू आर गोइंग टू गेट अ मार्वलेस रिजल्ट आउट ऑफ इट. एंड अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी साथ साथ चलती रहती है तो किसी पर्सन के साथ रैपो बनाना इजी होता है, उसके इमोशंस में टैप इन करना बहुत इजी होता है, उसकी बात को समझ पाना बहुत इजी होता है. तो इंट्यूशन बेस्ड कुछ साइंसेस होती हैं जिसमें आप इंट्यूशन के ऊपर एनर्जीज को सेंस करते हो, और साइकिक कनेक्शन भी कई लोगों ने कहते हैं, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड्स में उनको साइकिक ही कहा जाता है. तो वो अपने इंट्यूशन में टैप इन करके आपको कुछ कुछ बातें कहते हैं जो आपको सही भी होती हैं और नहीं भी होती हैं. तो इस तरीके की साइंस है. इंट्यूशन साइंस में टैरो भी एक इंट्यूटिव साइंस है, क्योंकि जो टैरो हम पढ़ने जा रहे हैं, दे हैव 78 कार्ड्स, ओनली 78 कार्ड्स, और उनमें एक सर्टेन पिक्चर के डिपिक्शंस हैं. हर एक पिक्चर का कुछ मतलब है, पर अल्टीमेटली जब आप ओवर द ईयर अपने ये टैरो कार्ड प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे उन पिक्चर्स में जो भी दिखाई दे रहा है आप उसके अलावा भी कुछ और बोल रहे होगे. लाइक एनी अदर साइंस, आप अगर एस्ट्रोलॉजी करते हैं, आपको उसमें कुछ और दिखाई दे रहा है, पर समथिंग सडनली आपके मुंह से निकलता है कि ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है. तो इस तरीके की चीजें ये आपके इंट्यूशन के बारे में बात करती हैं. क्रिस्टल बॉल आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग क्रिस्टल बॉल में, वो भी काफी हद तक वो इंट्यूशन बेस्ड साइंस है. पेंडुलम डाउजिंग, actually Saurabh sir is totally against of dowsing and he's working on your subconscious, but still pendulum dowsing is a intuitive science and that is really a science अगर हम उसकी डीपर स्टडी करते हैं. पर he is also correct to an extent, and डाउजिंग इज इंट्यूटिव साइंस, ये भी बिल्कुल तरीके से करेक्ट है. कई लोग ऐसे होते हैं ब्लाइंड फोल्ड भी करके पढ़ लेते हैं. आपने देखा ना, बहुत सारे बच्चे ब्लाइंड फोल्ड करते हैं और पूरा पूरा न्यूज़पेपर पढ़ देते हैं. सौरभ ने थोड़े दिनों पहले एक ऐसी ब्रेन एक्टिविटी बच्चों के साथ करवाई थी. मेरी सिस्टर की जो बेटी है, शी इज 7 year old एंड शी इज केपेबल ऑफ रीडिंग ब्लाइंड फोल्ड्स. वो आंखों में पट्टी बांध के न्यूज़पेपर पढ़ लेती है. और उसकी सिस्टर्स यानी मेरी बेटी और उसकी कजिन्स उससे पूछते हैं कैसे कर पाती हो, तो वो कहती है बस मुझे पता चल जाता है. तो दैट इज टोटली इंट्यूशन. एंड सर्टेन फैकल्टीज ऑफ माइंड आपकी जो है वो एक्टिव हो जाती हैं. विजन्स, कई सारे लोग होते हैं ना, मुझे विजन्स आते हैं, मुझे ड्रीम्स आते हैं, ड्रीम्स में कोई चीजों का पूर्वाभास हो जाता है, मैं बैठे बैठे कोई चीज अचानक से सोचती हूँ वो सच हो जाता है. तो दीज ऑल आर इंट्यूशंस. एंड मेक इट क्लियर कि अगर आप ऑकल्ट में हैं, अगर आप इस ऑकल्ट को एक्चुअली प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आप अपने आप धीरे धीरे स्पिरिचुअल होते जाएंगे, अपने आप धीरे धीरे आप इंट्यूटिव भी होते जाएंगे. एंड मैंने ऐसा हमेशा एक्सपीरियंस किया है कि ना चाहते हुए भी आप कुछ ऐसी बातें करते हैं जो बाद में आपको रियलाइज होता है कि हमने ऐसी बातें क्यों करी. मेरा इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था. किसी ने मेरे को एक दिन ऐसे ही मैसेज किया, एक सडनली रैंडम नंबर से एक मेरे को मैसेज आया कि मैडम आई वांट टू टॉक टू यू, दिस इज समथिंग रियली अर्जेंट.
मैंने पता नहीं क्यों नहीं, मैंने उनको लिखा कि देयर इज सम मिसहैप। मैंने सडनली उनके उस मैसेज को पढ़कर एक मैसेज टाइप कर दिया उनको कि देयर इज देयर एनी मिसहैपनिंग इन योर फैमिली। तो उन्होंने बोला यस। मैंने कहा इज इट अबाउट योर किड्स? कहती यस। फिर उसके बाद मेरा दिमाग एकदम से ना, माइंड होता है ना, ब्लो हो गया एकदम से। मैंने सौरभ को बोला व्हाट इज दिस हैपनिंग टू मी। मैंने तो कुछ सोचा नहीं, किया नहीं, पर अल्टीमेटली पता चला कि उनके ट्विंस हुए थे और उनकी डेथ हो गई थी दोनों की। और दैट वाज लाइक सुपर सरप्राइजिंग फॉर मी। एंड फिर मैंने रियलाइज किया कि हमें अपने कुछ भी बोलने से पहले कितना सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि पता नहीं हम किसकी लाइफ में क्या अच्छा और क्या बुरा करने वाले हैं। जो इनपुट बेस्ड जितनी भी ऑक्युलर साइंसेस हैं, उसमें हम तरह तरह की चीजों को के इनपुट लेते हैं, स्पेशली डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और उनको एक सर्टेन वे में एनालाइज करते हैं और फिर उनके रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करते हैं। उन रिजल्ट्स के हिसाब से हम आगे आने वाली संभावनाओं के बारे में बात करते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटीज क्रिएट होंगी आपके आसपास। अब वो एक्चुअली पूरी होंगी या नहीं होंगी तो वो बहुत कुछ आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। तो मैंने बोला जितनी भी इनपुट बेस्ड साइंसेस बोल रही हूँ मैं, बिकॉज दे ऑल आर साइंस। साइंस एक सर्टेन एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट से एक सर्टेन कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है और उससे फिर अंदाजा लगाया जाता है कि अगर ये चीज ऐसे 10 बार होगी तो इसका ये रिजल्ट होगा। तो डेफिनेटली दीज ऑल ऑकल्स आर साइंस। बेसिकली जो इंडियन ऑकल्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट करके हमारे ऋषि मुनियों ने इन साइंसेस को डेवलप किया है। एंड दे हैव लाइक स्ट्रॉन्ग रूट्स। ऐसा नहीं है कि फ्लूक में चल रही हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु, ये सारी जो चीजें हैं ये सारी हमारी ऑकल्ट साइंसेस हैं। पर मैं हमेशा यही कहती हूँ कि these are not only occult sciences, these are occult arts also. These are art of predicting. क्योंकि आप किस तरीके से चीजों को परसीव करते हो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जैसे समझोगे वैसे ही आप सामने वाले को समझाओगे। सो दीज आर आर्ट एंड साइंस बोथ। टैरो कार्ड हम जो आज की क्लास में, इस क्लास में हम टैरो कार्ड पढ़ने वाले हैं वो राइडर वेट टैरो कार्ड्स हैं। और आई होप आप सबके पास अपने अपने कार्ड्स होंगे। अगर नहीं है तो आप ऑर्डर कर दीजिए। ये राइडर वेट कार्ड है, इनकी पिक्चर्स ऐसी है, ठीक है। बहुत इजीली अमेजोन पे अवेलेबल है। इनके बारे में मैं अभी आपको पीपीटी में और क्लियर पिक्चर दिखाऊंगी तो आप इसके बारे में जान पाओगे। ये राइडर वेट कार्ड जो है ये 1909 में लंदन में, इंग्लैंड में किसी ने डेवलप किए थे, जिनका नाम था राइडर वेट। ये राइडर वेट नहीं, उनका नाम था एडवर्ड वेट। इसको पामेला कोलमैन स्मिथ नाम की एक लेडी ने इनका इलिस्ट्रेशन किया था। ये और क्या बोलते हैं, इस डेक को इलिस्ट्रेशन किया था और राइडर ब्रदर्स ने इनको पब्लिश किया था, इसलिए हम इसे राइडर वेट डेक कहते हैं। ये 1909 में यानी कि 100 साल के करीब पुराने कार्ड्स हैं और दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेक अवेलेबल इन दी हिस्ट्री। और ज्यादातर जितने भी ऑरिकल्स एंड जितने भी एंजल्स कार्ड हैं उनको इन्हीं से इंस्पायर होके आगे आगे बनाए गए हैं। तो दीज आर दी बेसिक वन। जो भी लोग टैरो रीडिंग करना चाहते हैं उनके लिए एडवाइजेबल है कि वो सबसे पहले इन कार्ड्स को पढ़ना सीखें। दीज कार्ड्स हैव सर्टेन एनर्जीज और इनको अगर आप सीख जाते हो तो बाकी आगे आने वाले सारे डेक्स को पढ़ना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। आपने देखा होगा एक टैरो रीडर हमेशा सिर्फ एक ही डेक से नहीं पढ़ता है, कई सारे डेक्स को यूज करता है। मी माई सेल्फ ऑल्सो यूज 3 डेक्स। एक मैं ये राइडर वेट पढ़ती हूँ, एक मैं लाइट एंड शेयर पढ़ती हूँ और एक एंजल कार्ड से गाइडेंस लेती हूँ। सो दीज आर डिफरेंट। एंड इसके अलावा भी अगर आप नोन अननोन मोर देन 100 टाइप ऑफ डेक्स आर अवेलेबल in the market. You can develop your own also. My daughter is not only learning tarot, she is developing her own tarot deck also. उसको इन वाले डेक में जो ये सारी मेल फिगर्स हैं वो उसको नहीं पसंद है। उसने बोला आई वांट ऑल दीज फीमेल फिगर्स एंड शी इज इलस्ट्रेटिंग, सो शी इज डेवलपिंग हर ओन। बल्कि ऐसा एक डेक है ऑलरेडी मार्केट में जिसे शायद विच डेक या ऐसा कुछ कहते हैं, जिसमें ये सारे फिगर्स फीमेल है। बट मेरी बेटी को इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ फीमेल चाहिए तो वो अपने लिए बना रही है। तो कोई भी अपने लिए कार्ड्स बना सकता है ये, क्योंकि आपकी एनर्जी से जुड़ते हैं।
मार्केट में बहुत तरह तरह के कार्ड्स हैं, गाइडेंस कार्ड है, आप किसी को भी पढ़ सकते हो, लेकिन बेस हमेशा यही रहेगा। सो दे आर इंडिपेंडेंट एंड इंट्यूशन बेस्ड। वेस्टर्न वर्ल्ड में जो लोग टैरो पढ़ते हैं उनको साइकिक बोलते हैं। अब हम टैरो रीडिंग के बारे में बात करते हैं। टैरो है क्या? ये जो टैरो है, टैरो एक्चुअली कार्ड्स का नाम है, इनको टैरो बोलते हैं। टैरो का मतलब होता है एक सर्टेन साइज का, एक जैसे हमारे बोलते हैं ना पोस्ट कार्ड, वो उसका ये मतलब होता है। ये कई सही अलग अलग साइजेस में भी मिलते हैं। जो कार्ड मैं आपको साइज दिखा रही हूँ, इससे छोटे कार्ड्स में मिलते हैं और इससे बड़े कार्ड्स में मिलते हैं। तो वो टोटली आपकी कन्वीनियंस है, आपकी पसंद है कि आप कौन सा कार्ड लेना चाहते हो। दीज आर द स्टैंडर्ड वर्जन। टैरो इस टैरो डेक में 78 कार्ड्स हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 78, जिसमें से 22 मेजर आर्कानास है और 56 माइनर आर्कानास है। आज हम बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा क्लास में, पर आगे आने वाली क्लासेस के लिए ये बेसिक जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली उनके लिए जो कि इसमें नए। तो 56 जो 22 मेजर आर्कानास है, सब एक कार्ड्स में कोई ना कोई पिक्चर, कोई ना कोई फिगर बनी हुई है। हर एक कार्ड पे उसका नंबर लिखा हुआ है और मेजर आर्काना में उस कार्ड का नाम भी लिखा हुआ है। वैसे तो मेरे पास पीपीटी भी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको रियल कार्ड दिखाऊंगी। जैसे कि एक ये आप देखिए मेजर आर्काना का कार्ड है, ठीक है, इसमें इसके नीचे नाम भी लिखा हुआ है। हर एक कार्ड का से फैमिलियर होना जरूरी है। हर एक कार्ड के ऊपर उसका नंबर भी लिखा होता है और नीचे उसका नाम लिखा होता है। ये मेजर आर्काना का कार्ड है। अगर आप जैसे एक और मैंने कार्ड निकाला तो द टावर, ये भी एक मेजर आर्काना का कार्ड है। ऊपर इसका नंबर लिखा हुआ है, नीचे इसका नाम लिखा हुआ है और ये पिक्चर है। ये पिक्चर हमसे कुछ कहती है। ये पिक्चर हमसे कुछ कहती है, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग बातें कहती है। एक इसका बेसिक मतलब है और हर एक सिचुएशन में, रिलेशनशिप में कुछ और कहेगी, पढ़ाई के लिए कुछ और कहेगी, हेल्थ के लिए कुछ और कहेगी, प्रोफेशन के लिए कुछ और कहेगी। बस हमें पढ़ना है, इसको सीखना है। अगर हम माइनर आर्काना के सारे मेजर आर्काना के कार्ड देख रहे हैं, हाँ, अगर हम माइनर आर्काना देखें तो ऐसी माइनर आर्काना होती है, उसमें नीचे नाम नहीं लिखा होता है। जस्ट आपको पता चलेगी कैसे देखना है, नीचे नाम नहीं लिखा है, पर ये वैंड का कार्ड है। इसमें 1 2 3 4 वैंड बने हैं, आप पहचानना सीख जाओगे और ऊपर 4 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कार्ड भी कुछ ना कुछ आपसे जरूर कहता है। ये भी माइनर आर्काना का कार्ड है, पर ये मैंने इसलिए निकाला है कि ये एस का कार्ड है। इसमें मेजर आर्काना की तरह यहाँ नाम लिखा हुआ है। आप हम सब लोगों को प्लेइंग कार्ड्स के बारे में पता है। प्लेइंग कार्ड्स में कैसा होता है, 1 to 10 होते हैं, फिर उसके बाद 3 कोर्ट कार्ड्स होते हैं, जिसमें जैक, क्वीन एंड किंग होते हैं। और हमारे जो टैरो है, इसमें 4 कोर्ट कार्ड होते हैं, एक पेज, एक नाइट, एक किंग एंड एक क्वीन। और एस जैसे हम उसमें पढ़ते हैं, एस सबसे बड़ा होता है। एस को बिगर मानते हैं, बिगनिंग मानते हैं स्पेशली। और जो कोर्ट कार्ड है वो हर एक कोर्ट कार्ड एक सर्टेन एज को रिप्रेजेंट करता है। लाइक पेज जो है वो टीनेजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो नाइट्स हैं वो यंगस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, किंग और क्वीन फीमेल एंड मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को मिच्योर वुमेन एंड मिच्योर मेन की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इस पूरी जर्नी में हम जब बात करेंगे तो हम सबसे पहले माइनर आर्काना पढ़ेंगे। चारों तरह के 4 कप्स, 4 तरह के माइनर आर्कानास होते हैं, कप्स, वैंड्स, पेंटिकल्स एंड सॉर्ड्स। सो ये जो साइन है, ये गोल जो साइन है, इसे हम पेंटिकल कहते हैं, ठीक है। ये जो डंडे हैं, स्टिक्स हैं, इनको हम वैंड्स कहते हैं। इसके बाद इस तरीके के जो हर एक पिक्चर में एक ऐसा कप लिया होगा, तो इन्हें हम कैप आर्काना, माइनर आर्काना बोलेंगे, कप बोलेंगे। और कुछ होंगे जिसमें हमारे पास सॉर्ड होंगे। लेट मी टेक आउट दिस वन, ये सॉर्ड। तो ये 4 तरीके के डेक होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो 22, हम सबसे पहले इन 1 to 10 वैंड्स का पेंटिकल एंड सॉर्ड्स पढ़ेंगे, यानी 40 कार्ड्स पहले ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम 22 कार्ड्स पढ़ेंगे जो मेजर आर्काना के हैं। उसके बाद हम 16
कोड कार्ड पढ़ेंगे। कोड कार्ड सबसे लास्ट में इसलिए क्योंकि कोड कार्ड्स पढ़ना थोड़ा सा ट्रिकी है। बाय द टाइम हम वहां पहुंचेंगे, इतने सारे कार्ड्स को पढ़ना सीख जाएंगे तो वो हमारे लिए समझना इजी हो जाएंगे, इसलिए हम इस तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे लोग आपसे पूछेंगे, आप लोगों ने सबने बोला हम टैरो में बहुत इंटरेस्टेड हैं, पर टैरो से आप कर क्या सकते हैं ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए। तो आप टैरो से क्या कर सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। We can predict somebody about somebody's life, what the person is going through, क्या problem उसकी चल रही है, how the person is feeling from inside. We can read through tarot, and we can guide that person accordingly, according to me. Yes, Loy, आप बताएं। In the current situation, what is happening in a person's life, I think that will help for the tarot to predict for that is better. Future, I don't know much about it, how it can help, tarot can help. But I think the current situation in a person, what is dealing with, I think it will help to predict better. And yes, Maheshwari, according to you? According to me, you can get any type of answers for any type of questions. It could be about past, present, or future, or any type of situation in the life, and you can also get an answer on what might be the solution for certain problems intuitively as well. So yeah. Yes, so yes, tarot can help you in every area, be it health, be it relationship, be it finances, career. पर जितना भी हम लोगों ने ऑकल्ट में जो भी हमारी जर्नी है, हमने ये देखा है कि लोगों के सबसे पहले क्वेश्चन होता है जॉब या पैसा या फाइनेंसेस के बारे में, दूसरी बात आती है रिलेशनशिप के बारे में, तीसरी एजुकेशन की, और हेल्थ कभी कोई पूछता है कभी कोई नहीं पूछता है। पीपल आर हार्डली बॉदर्ड अबाउट हेल्थ। बट ये जो पेंडेमिक किया ना, इसमें लोगों ने समझाया, लोगों को ये समझ में आया कि हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट एरिया है हमारी लाइफ का और कितना नेग्लेक्टेड एरिया है हमारी लाइफ का। जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी वो सब लोग सरवाइव कर पाए, और जिनकी इम्यूनिटी वीक थी उनको हमने खो दिया। तो ये पेंडेमिक ने एटलीस्ट हेल्थ को थोड़ा सा हाईलाइट करने में हमारी हेल्प करी है। अदरवाइज सबसे मोस्ट निग्लेक्टेड एरिया है। बहुत सारे लोग टैरो के लिए जब आपके पास आएंगे, स्पेशली आप देखेंगे टैरो रीडिंग आपसे कराने वाली गर्ल्स होंगी, दे आर वेरी मच फैसिनेटेड। टैरो रीडर्स के बारे में एक सर्टेन हमारे मन में परसेप्शन है, एक बहुत सारे क्रिस्टल की बैंक, उसने क्या रिंग्स पहने होंगे, बहुत सारे क्रिस्टल ब्रेसलेट, गले में बड़ा सा रोप पहना होगा, बाल खोले होंगे, गहरा काजल लगाया होगा, And big nails and doing या और डेफिनेटली वो नेल आर्ट किया होगा और वो सब कर रही होंगी। सो ऐसा जरूरी नहीं है टैरो बनने के लिए। आप कैसा भी अपना कहते हैं, आप अपने आप को कैसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज टोटली अप टू यू। पर इनिशियली जो लोग इंडिया में टैरो लाए उनका ऐसा था, देखने में वो लोग ऐसे थे, इसलिए हमारा ऐसा वो बन गया कि टैरो रीडर। मेरे से तो बहुत बार लोग पूछते हैं आप टैरो रीडिंग भी करते हो, लगते तो नहीं हो। मैंने कहा टैरो रीडिंग करने के लिए लगने की क्या जरूरत है, टैरो रीडिंग हमें आती है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें लगना जरूरी है। सो डोंट वरी। यस मानसी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, बट my request is कि I'm very bad in reading these chats. Better you raise your hand and just speak up. Yes, please. सो मैम एक्चुअली मैंने ऐसा देखा है, क्योंकि वो एप्स आपको पता होगा कि थोड़ा भी जैसे टैरो एप्स होती है, कुछ होता है, तो मैं देखती हूँ जो उनके लाइव शोज होते हैं, तो आई एम वेरी मच अवेयर अबाउट दैट व्हाट इज टैरो, व्हाट इज मेजर आर्काना। इवन ऑल्दो मैंने थोड़ा सा यूट्यूब पे देखा भी था, एंड मतलब 10 to 20% आई नो अबाउट द टैरो। बेसिकली व्हाट आई ऑब्जर्व दैट कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना, फीलिंग से रिलेटेड होते हैं मोस्टली, इमोशंस। इमोशंस। या क्योंकि आप देखेंगे कि 99% जो लेडीज हैं वो टैरो रीडर्स के पास जाती हैं, और लेडीज को स्पेशली वो इमोशनली ड्रिवन होती हैं।
तो उनके सारे क्वेश्चंस इमोशन से भरे हुए होते हैं। एंड हेयर कम्स योर इंट्यूशन। अगर आप थोड़े भी इंट्यूटिव हैं, थोड़ा भी स्पिरिचुअल हैं, आपका हार्ट चक्रा बिगर है, तो यू कैन स्टेप इन दिस इमोशन, एंड in that case you are the best, you can become a best guide to him or her, whosoever it is. Yes, definitely you are correct. But see, I know आप महेश्वरी को पता है, आपको भी टैरो के बारे में पता है, पर in the class we need to go in a certain flow. I need to talk about all these basics, then only I can grow, है ना? आगे आगे हम तभी बढ़ पाएंगे. So maybe आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा हो, प्लीज बेयर विद मी. बोरिंग तो नहीं है मैम. So it's like that. तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे. जो कार्ड्स का जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली जो मेजर आर्काना कहते हैं. मेजर आर्काना का मतलब एक्चुअली क्या होता है? नॉलेज. मेजर आर्काना एंड माइनर आर्काना. तो मेजर नॉलेज, माइनर नॉलेज अबाउट द लाइफ. So major arcana means major knowledge about the life. Actually जो major arcana है वो इस तरीके से बनाए गए हैं, वो आपके लाइफ लेसन्स के बारे में बात करते हैं. जो हमारे लाइफ में एक सर्टेन एंड ऑफ द क्लास में आपको पूरे मेजर आर्काना को एक लाइफ साइकिल की तरह भी पढ़ना सिखाऊंगी. उससे आपको याद हो जाएगा, इजी हो जाएगा याद रखना. हम पूरी क्लास में प्रैक्टिस भी करते रहेंगे. मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इन 1 और 2 क्लासेस आप सब लोगों का टेक आपके पास हो, सो दैट हम क्लास में उसकी प्रैक्टिस साथ साथ करते हुए चले. अदरवाइज पूरे आप कार्ड्स पढ़ लोगे, मीनिंग पढ़ोगे, ऐसे एक थ्योरेटिकल क्लास होके रह जाएगी और फिर एंड में आपको कुछ भी अचीव नहीं होगा. मैं ऐसा नहीं चाहती. ठीक है. तो इसलिए जो मेजर आपके स्पिरिचुअल, बेसिकली स्पिरिचुअल या लाइफ लेसन के बारे में बात करता है. लाइक कि अगर आपको सर्टेन सफरिंग है तो है, वो फिर उस समय आपको उस सफरिंग को कम कर सकते हो आप, लेकिन उससे निकल नहीं सकते. ये सबको हमें पता है. ये सारी ऑकल्ट साइंस हमें यही सिखाती है कि कोई बैड पीरियड है तो है, उस सबको आपको फेस करना ही पड़ेगा. कोई हंस के करेगा, कोई रो के करेगा. जो हंस के करेगा वो जीत जाएगा. तो हमें हंस के कैसे उस सिचुएशन को डील करना है, वही सीखना है पूरी इस ऑकल्ट जर्नी में. बेसिकली अब हम टैरो कार्ड में भी यही सीखेंगे. ठीक है. तो जो माइनर आर्काना है वो माइनर आर्काना या माइनर या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा करते हैं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की तरफ इशारा करते हैं. वो आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं, लाइफ के इवेंट्स के बारे में बात करते हैं. इवेंट्स क्या है? शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, घर खरीदेंगे, जॉब कब बदलेंगे, पैसे कब बढ़ेंगे. तो इस तरह के इवेंट्स के बारे में ज्यादातर माइनर आर्काना बात करते हैं. मैं आज जो ये बाइफिकेशन आपको बता रही हूँ, थोड़े टाइम में आप ये बाइफिकेशन भूल जाएंगे, और एंड फॉर श्योर भूल जाएंगे, बिकॉज आप उसको एक सर्टेन स्टोरी डेवलप करके पढ़ने लगेंगे. बट यू मस्ट नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मेजर एंड द माइनर आर्काना. जब भी हमारे किसी भी स्प्रेड में अगर मेजर आर्काना का कोई कार्ड आता है तो उसको आपको 50% वेटेज देनी है. मतलब अगर आप 10 कार्ड का स्प्रेड लगा रहे हो तो आप मान लीजिए 10 कार्ड में आपके 9 माइनर आर्काना के कार्ड आए हैं, तो एक कार्ड जो है उसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, उसको बहुत ज्यादा वेटेज देके आपको पढ़ना है. कार्ड के जो स्प्रेड्स हैं वो कई तरीके के लगते हैं. 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, ऐसे बहुत सारे. इन सारे स्प्रेड्स के बारे में हम बात करेंगे. तो हम टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं. टर्म्स क्या क्या यूज करेंगे? मेजर आर्काना के बारे में एक टर्म है, माइनर आर्काना एक टर्म है. इसी तरीके से कई बार हम बोलेंगे यू गॉट अ हिट, मतलब करेक्ट आंसर. ठीक है. हिट को बहुत बार आप करेक्ट की तरह पढ़ते हैं. स्प्रेड्स जो हम प्लेसमेंट करते हैं व्हाइल डूइंग द प्रेडिक्शन, अपनी इंटेंशन के हिसाब से हम सर्टेन प्लेसमेंट ऑफ कार्ड्स करते हैं, जिसे हम स्प्रेड कहते हैं. जैसे कि बहुत कॉमन एक स्प्रेड है 3 कार्ड स्प्रेड, जिसमें हम लेफ्ट मोस्ट वाला लगाते हैं पास्ट, बीच वाले को हम कहते हैं प्रेजेंट, और राइट मोस्ट वाले को हम कहते हैं फ्यूचर. कैसे पढ़ेंगे? डोंट वरी, आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए कि अरे ये इसका क्या मतलब है. तो वो हमारी पास्ट के बारे में बात करता है, बीच वाला हमारे प्रेजेंट के बारे में बात करता है, और राइट वाला हमारे फ्यूचर के बारे में बात करता है. तो ये जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है, ये पोजीशन ऑफ द कार्ड है. जो हमने 3 कार्ड, पूरे कार्ड्स को स्प्रेड करके जो 3 कार्ड निकाले, हम उसे 3 कार्ड स्प्रेड कहते हैं. तो ये 2-3 टर्म्स ये हो गई. पोजीशन ऑफ द कार्ड मैंने आपको बताया, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर.
लेकिन ये हमेशा यही पोजीशन रखना होगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर स्प्रेड का 3 का ही रहेगा या 3 से ज्यादा भी कर सकते हैं? हमारी जो स्प्रेड्स हैं वो बहुत तरीके के होते हैं। 1 कार्ड स्प्रेड होता है, 2 कार्ड स्प्रेड होता है, 3 कार्ड स्प्रेड होता है, 4 कार्ड स्प्रेड होता है, 5 कार्ड स्प्रेड होता है, 8 कार्ड स्प्रेड होता है, 10 कार्ड स्प्रेड होता है। एंड ऑलमोस्ट इन दिस कोर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 7 of 8 टाइप के हम स्प्रेड्स के बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो हम 8 टाइप के स्प्रेड्स के बारे में बात करेंगे वो ही स्प्रेड्स अवेलेबल हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे स्प्रेड्स अवेलेबल हैं और आप अपना खुद का भी एक स्प्रेड बना सकते हो। एज आई सेड, दिस इज अ इंट्यूटिव साइंस। आप अपने इंटेंशन से कार्ड निकालोगे कि ये वाला कार्ड बताएगा कि मेरी हेल्थ कैसी है, ये वाला कार्ड मेरे को बताएगा कि मेरी हेल्थ आगे कैसे रहेगी, ये वाला कार्ड मुझे बताएगा कि कहाँ पे कमी है, ये वाला कार्ड बताएगा कौन सा बॉडी पार्ट। तो ये इस तरीके से आप अपना भी डेवलप कर सकते हो। बट जो इनके बारे में हम बात करेंगे वो स्टैंडर्ड स्प्रेड्स जो मार्केट में अवेलेबल है, जो दूसरे टीचर्स उन्हें लगातार पढ़ाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद बहुत बार आप सुनेंगे कार्मिक कनेक्शन, कर्मा बेस, इस तरीके के। तो जब भी हम कर्मा के बारे में बात करते हैं तो वो पास्ट लाइफ कर्मा या कार्मिक अकाउंट, इन सब चीजों के बारे में, जो बोया वही काटोगे, जो किया था वही वापस आएगा, इस तरीके की बातों को कर्मा रिप्रेजेंट करता है इन हमारी पूरी रीडिंग में। सो इस सब के बारे में बात करना इतना डिटेल में जरूरी नहीं है क्योंकि वी ऑल नो अबाउट दैट, बट स्टिल अगर कहीं पर ऐसा लगेगा तो जरूर बात करेंगे इसके बारे में। Psychic protection. Now, this is extremely important. Psychic protection. As we said, this is an intuitive science. और जैसा मानसी ने बोला, जितने लोग भी क्वेश्चन पूछते हैं बहुत इमोशनल पूछते हैं, तो उनके इमोशंस हमारे ऑरा को अटैक ना करें, उनके इमोशन से हम ड्रिवन ना हो जाएं, उनके इमोशन में हम स्टेप अप ना कर लें। देखो, उनके शूज में हमें पैर रख के उनकी सिचुएशन समझना है, बस उनके इमोशन से ड्रिवन नहीं हो जाना है कि अरे आज तो मेरे से मानसी ने ये क्वेश्चन पूछा, शी मस्ट बी वेरी सैड, पता नहीं वो कैसे डील कर रही होगी। वंस मानसी की रीडिंग डन, वी शुड बी de-addressed. So psychic protection plays very important role in tarot. कैसे करते हैं इसे हम? एक्चुअली साइकिक प्रोटेक्शन का मतलब है कि लोगों की एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना। वी ऑल आर एनर्जी, वी ऑल हैव ऑरा एंड ऑरा आर मेड ऑफ एनर्जी। सो हमें दूसरों की नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। पॉजिटिव एनर्जी किसी की कभी भी कोई भी हार्म हमें नहीं पहुंचाती है। किससे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि आप किसी के इमोशंस में अगर ड्रिवन हो जाते हो तो उतना ही हर्ट, उतना ही पेन, उतना ही सॉरो आप सडनली खुद फील करने लगते हो। चाहे आपके घर के सर्कमस्टेंसेस, आपके ऑफिस के सर्कमस्टेंसेस या आपके खुद के मूड ऐसा ना हो, बट आपको उन चीजों से अपने आप को सेव करना है। इसलिए साइकिक प्रोटेक्शन प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कैसे करते हैं साइकिक प्रोटेक्शन? आपने देखा होगा जितने भी लोग टैरो रीडिंग करते हैं उनके पास एक कैंडल जल रही होती है। कोई लोग लाफिंग बुद्धा रखते हैं, कोई एंजल्स रखते हैं, कोई क्रिस्टल्स रखते हैं। तो ये सब वेरियस वेज हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। इफ यू नो हाउ टू क्लीन and charge a crystal, you can charge a crystal and keep it for your protection. If you know how to talk to angels, you can keep angel figures, laughing buddha का certain extent तक। अगर आप खुद भी एनर्जी हीलर हैं किसी तरीके के, जैसे हम प्राणिक हीलिंग में हम लोगों को साइकिक सेल्फ डिफेंस सिखाई जाती है, तो उसमें अगर एनर्जी हीलिंग किसी को आती है तो वो अपने आप को, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो देयर आर वेरियस वेज, और ऐसा जरूरी नहीं है कि टैरो पढ़ने के लिए आपको साइकिक सेल्फ डिफेंस ही आता हो। देयर आर वेरियस अदर वेज टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। ठीक है, सो यू कैन इन्वोक योर गॉड, यू कैन आस्क हिम फॉर प्रोटेक्शन। इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं। दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे टैरो में कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिन्हें हम स्केरी कार्ड्स के कहते हैं, स्केरी कार्ड्स हैं। जैसे उसमें एक डेथ का कार्ड आता है, एक अभी मैंने आपको टावर का कार्ड दिखाया, या डेविल का कार्ड आता है, मून का कार्ड आता है। ये जो सारे हैं इन्हें हम स्केरी कार्ड्स कहते हैं। स्केरी कार्ड्स का मतलब ये नहीं है कि इनको देखकर हमें डर जाना है। स्केरी कार्ड्स का मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड्स हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज आपके लाइफ में आता है, कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज खत्म हो जाती है, कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो
जाती है। तो ये कार्ड्स जो हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड्स हैं। Here I would like to give you a piece of advice. Kindly make your own notes while listening me. You are going to get the notes only at the end of the course. So in the meanwhile, kindly take your notes. So this is my smart trick to make my student read and write so that they can yes, so they can retain as much as they can. So हमारे डेक में 10 स्कैरी कार्ड्स हैं, उन्हें हम स्कैरी कार्ड्स की तरह बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, हम उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड्स की तरह पढ़ेंगे. So this is going to be totally our outlook कि हम उस चीज को कैसे देखते हैं, उसी तरीके से हम उसे परसीव करते हैं और उसी तरीके से हम सामने वाले को गाइडेंस देते हैं. स्केरी कार्ड्स क्या कहते हैं? यू नीड टू चेंज योर ओल्ड पैटर्न्स. बेसिकली वो यही कहते हैं पुराने पैटर्न को चेंज करना है, अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को चेंज करके अपने ऊपर काम करना है, नई फाउंडेशन बना के नई चीजों को के लिए रेडी होना है. While doing the tarot, your approach should be gentle. आपका एटीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरों को डराएं. ओह अच्छा, डेथ का कार्ड हो गया, इसका क्या मतलब है, कुछ समथिंग मेजर. नो नो नो, बी जेंटल. इवन इफ यू कैन सी समथिंग स्कैरी, बी काम एंड कंपोज. जो सामने वाले का जैसा टेम्परामेंट है, हियर कम्स द फेस रीडिंग, सामने वाले का जैसा टेम्परामेंट है उसको समझ के उसको बताना है, किस तरीके से बताना है. क्योंकि आप ये मान के चलिए किसी भी ऑकल्ट प्रोफेशन में आप बिलोंग करते हो, आपके पास कोई हंसता खेलता बंदा नहीं आने वाला. जो आएगा वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएगा एंड उस सबको अपनी उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन चाहिए. वो अगर आप उन्हें और डराओगे तो डोंट प्ले विद देयर माइंड्स, प्लीज डोंट प्ले विद देयर माइंड्स. आपका काम है उन्हें कूल एंड काम करना, उनको सिचुएशन से ठीक से सिचुएशन को रियलाइज करवाना, मेक देम अंडरस्टैंड कि दिस इज द सिचुएशन एंड हाउ दिस इज द वे यू कैन कम आउट ऑफ इट. हाँ तुम्हारे साथ तो ऐसा हो गया, ओहो दिस इज वेरी बैड, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 3 साल तक कुछ नहीं होगा. प्लीज ऐसे नहीं करना है. दिस इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी. अदरवाइज फियर साइकोसिस पे बहुत कम दिन काम चलता है, लोग आपके पास आना बंद कर देंगे. आपको अपनी दुकान लंबे समय तक चलानी है तो बी पोलाइट. ठीक है. अगर कोई एक और ये एक रूल है मेरी तरफ से, आप चाहे तो मान सकते हैं, चाहे तो नहीं मान सकते. एज अ पीस ऑफ एडवाइस, अगर किसी की गाइडेंस कार्ड में आपका कोई स्कैरी या नेगेटिव कार्ड आता है तो ऑलवेज मेक अ पॉइंट कि यू टेक आउट अनदर कार्ड फॉर द गाइडेंस, कि ये जो स्कैरी या नेगेटिव कार्ड आया है फ्यूचर में हमें दिखाई दे रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है. टेक आउट अनदर कार्ड. लाइक सपोज मेरे पास डेथ का कार्ड आया और मैंने कहा ठीक है डेथ शोज समथिंग, अब मुझे क्या करना चाहिए फ्यूचर में. तो मैंने उसको बोला एक और कार्ड निकालते हैं, और वो कार्ड मुझे सन का दिखाई दिया. तो मुझे पता चल गया कि भाई जो ये सन एक पॉजिटिव कार्ड है, मेजर आर्काना का कार्ड है. तो हमें क्या पता चला, डेथ इज गोइंग टू डू सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन, पर उसके बाद एक सनलाइट है, डेफिनेटली उसके बाद एक अच्छा टाइम है. अब क्या है, कितना टाइम है, उन सब के बारे में भी हम बात करेंगे. तो हमें हमेशा हमारी अप्रोच जेंटल होनी चाहिए. एक बहुत ही ज्यादा हाइप्ड क्या बोलते हैं टॉपिक है रिवर्स कार्ड. आप मैम रिवर्स कार्ड पढ़ते हो, आप मैम रिवर्स कार्ड पढ़ाते हो, ये ऐसा मेरे से मेरे करियर में पता नहीं हजारों बारी क्वेश्चन मेरे से पूछा गया. व्हाट इज रिवर्स कार्ड? रिवर्स कार्ड, एक कार्ड अगर ये सीधा कार्ड है, अगर ये उल्टा हमारे स्प्रेड पे आ जाता है तो हम इसे रिवर्स कार्ड कहते हैं. इसका बेसिकली जो अपवर्ड डाउन जब भी हो जाता है तब हम इसे रिवर्स कार्ड कहते हैं. रिवर्स कार्ड का मतलब ये टोटली आपके डिस्क्रिप्शन है, आप रिवर्स कार्ड पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं. रिवर्स कार्ड में जो कार्ड है उसकी मीनिंग उल्टी हो जाती है या उसका डार्कर साइड बाहर आ जाता है. जैसे सनलाइट का डार्कर साइड सनसेट होगा. ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं. तो ये टोटली आपके ऊपर है, आप रिवर्स कार्ड पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़ना चाहते. मैं पर्सनली रिवर्स कार्ड नहीं पढ़ती हूँ. अगर मेरे स्प्रेड में गलती से उल्टा रिवर्स कार्ड आता है तो मैं दोबारा से स्प्रेड लगाती हूँ. दिस इज माई पर्सनल स्टाइल, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इतनी हार्ड नेगेटिविटी से देखना, थोड़ी सी पॉजिटिविटी को देखना ज्यादा बेटर है कि इतनी हार्ड नेगेटिविटी को देखें. So this is totally your discussion. आप बहुत सारे टैरो रीडर्स रिवर्स कार्ड ही पढ़ते हैं,
तो आप इमेजिन करिए कि अगर इसमें 10 ही नेगेटिव कार्ड है हमारे पास, जस्ट अ मिनट में, एक्चुअली 10 ही हमारे पास नेगेटिव कार्ड है, तो 10 ही पॉसिबिलिटी बनती है पॉजिटिव आने की, बाकी तो सब नेगेटिव ही आने वाले हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव ही आने वाले हैं. तो दिस इज देयर ओन लाइक वे. यस Maheshwari, please please. And I just want to say, even I do the same thing like yours. If negative comes, I kind of recheck the cards and then start from the beginning. Yeah, in the reverse and stuff. Yes. So this is totally your discretion and the way you want. अब एक मैंने आपसे बोला कि ज्यादातर जब हम रिवर्स कार्ड कहते हैं तो मैं उसमें ये बोलूंगी, उसमें जो सबसे मोस्ट डार्केस्ट जो क्वालिटी होती है उसको पढ़ा जाता है. मतलब ना केवल डार्क बल्कि मोस्ट डार्केस्ट क्वालिटी के बारे में बात करी जाती है. साइकिक प्रोटेक्शन, कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो दूसरों की नेगेटिविटी से. मैंने आपको बताया कि हमें साइकिक प्रोटेक्शन की क्यों जरूरत है, ये आप सब लोगों को समझ में आ चुका है. तो हम उसको बहुत तरीके से कर सकते हैं. अगर आप एंजल्स या स्पिरिट्स पे बिलीव करते हो, यू कैन इन्वोक योर आराध्य, जिनकी भी आप पूजा करते हो, चाहे वो कोई गुरु हो और चाहे वो कोई गॉड हो. अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं किया, क्या वो मेरे कहने से आएंगे, तो बिलीव इन देम. अपने भगवान के ऊपर विश्वास रखो. जब आप बचपन से आपने सुना, कोई भी अगर आप डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हो तो हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ोगे तो आप सडनली प्रोटेक्टेड हो जाओगे. सबकॉन्शियस ने फेथ किया ना. क्या कभी आपने देखा हनुमान जी आके आपके सामने से बस आपको एक्सीडेंट करने वाली थी, उन्होंने बस को रोक लिया? हैव यू एवर सीन? बट ये हमारा बिलीफ सिस्टम है. ये कहने से मतलब ये है कि आप जिनको भी प्रोटेक्शन के लिए इन्वोक कर रहे हो उनके ऊपर फेथ रखो. अगर आपका फेथ और बिलीफ है तो दे विल डेफिनेटली कम देयर एंड प्रोटेक्ट यू. प्रोटेक्शन के लिए आप क्रिस्टल्स को भी यूज कर सकते हो. क्रिस्टल्स को यूज करने से पहले बहुत सारे लोग ऐसे ही क्रिस्टल यूज करने लगते हैं. मेरी एक छोटी सी पीस ऑफ एडवाइस है कि क्रिस्टल जो है वो बहुत ही सटल एनर्जी कंडेंसर्स होते हैं. वो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं. तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू क्लीन देम प्रॉपरली एंड एनर्जाइज देम प्रॉपरली फॉर योर पर्टिकुलर थिंग. अगर आपको प्रोटेक्शन के लिए उनको तो चार्ज करें और फिर उन्हें यूज करें. और आप उनको कहीं से भी क्लीन और चार्ज करना सीख सकते हैं. यूट्यूब पे भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, बहुत सारे सब जगह आपको इजीली मिल जाएगा. नहीं तो मैं भी क्रिस्टल का कोर्स करवाती हूँ, क्रिस्टल हीलिंग का. कभी आप चाहें तो वहां से भी सीख सकते हैं. साइकिक प्रोटेक्शन शील्ड्स, सर्टेन शील्ड्स हम बनाते हैं. शील्ड्स कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ. एनर्जेटिकली शील्ड्स बनाते हैं, लाइक कि हम बैठ जाते हैं जहां पर भी हमें बैठना होता है. हम विजुअलाइज करते हैं कि वी आर अ ट्री और हमारी रूट्स इनसाइड द अर्थ जा रही है. सी दिस इज द एनर्जी पार्ट. ये किसी भी टैरो कोर्स का पार्ट नहीं है. दिस इज आई एम टेलिंग यू, प्लीज नोट इट डाउन हाउ टू डू एंड ट्राई टू डू दिस प्रोटेक्शन डेली फॉर योरसेल्फ. यू विल सी द चेंज इन द, जैसे आप बाहर निकलते हो आपको मिलेगा. सो दिस इज द रूटीन. सबसे पहले आपको बैठ के 3-4 डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए, जिससे आपका माइंड सेंटर हो जाता है और फोकस्ड हो जाता है. फिर आपको बैठे बैठे अपने आप को विजुअलाइज करना है कि आई एम अ ट्री and my roots are deep inside the mother earth. So that is called rooting. उसके बाद आपको विजुअलाइज करना है कि आपके दूर ऊपर से या सन से, मान लीजिए सन से सनलाइट आपके ऊपर जैसे होती है ना, वो फोकस लाइट होती है ना, ऐसे करके फोकस गिरती है, तो उस तरीके से आपके ऊपर ऐसे फोकस लाइट आ रही है और आपके ऑरा के चारों तरफ वो एक बबल जैसा बन गया है. ठीक है, तो उसे हम साइकिक प्रोटेक्शन कहते हैं. एंड जस्ट ये प्रोटेक्शन आपके फेथ पर आपके लिए काम करें. तो आप सन लोग गॉड को, मून गॉड को, या जिसको भी आप बिलीव करते हैं उनसे, उनको आप इन्वोक करके कह सकते हो कि प्लीज शील्ड अस. इसको 3 बार करने से यू विल बी साइकिकली प्रोटेक्टेड. इसी में कई लोग कई सारे टीचर्स कहते हैं विजुअलाइज वाइट लाइट, कि व्हाइट लाइट के बबल में है. कोई कहता है विजुअलाइज पिंक लाइट, कोई कहता है विजुअलाइज गोल्डन लाइट. सी हर एक लाइट के कलर का एक अलग मतलब है. जो आपको अच्छी लगती है आप वो यूज करिए. अगर मैं कलर के मतलब पे जाऊंगी तो फिर एक अनदर पूरा फुल फ्लेश टॉपिक निकल के आएगा. सो इसलिए आप अपने पसंद के कलर से अपने आप को प्रोटेक्टेड शील्ड कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू मी, white light is the best light because it contains all the colors and you will get the protection of all the colors.
एक प्रोटेक्शन प्रेयर भी है, यूनिटी, उसे यूनिटी चर्च प्रेयर कहते हैं, और लोग बहुत बार ये यूनिटी चर्च प्रेयर करके भी अपने आप को विजुअलाइज करते हैं कि वी आर प्रोटेक्टेड नाउ। सो अगर आप चाहें तो यूनिटी चर्च वाली जो प्रेयर है आपको मैं लिखवा सकती हूँ, इफ यू आर बिलीवर इन दी Christianity. If you are not believer in the Christianity, then you can do any other prayer also. So it's like ki love of God surround me, love of light enfold me. ऐसे करके you must be knowing this ना Loy. So is kind of this. मतलब इसमें basically नहीं। we different हम लोग उसको invoke करते हैं. Yes, please बोलिए. Okay. आप दे दीजिएगा मैडम ये यूनिटी चर्च प्रेयर। यूनिटी चर्च प्रेयर आपको आपके नोट्स में मिल जाएगी, अगर अभी जाएगी। चाहते हैं तो मैं अभी नरेट कर सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। वुड यू लाइक टू राइट? No, not now. Maybe afterwards. Maybe. 2 years. आप notes में 2 बोल। years. Sorry, Lloyd, 2 years are there. 2 years, And then okay, no problem. I didn't thought like they may not want it like that. So please write it down. The light of God surround me. The love of God enfold me. The power of God The love protect of me. God Enfold me. Power of God protect me. The presence of God watch over me. This is a very beautiful prayer. आप मेडिटेशन के टाइम पे भी अगर इसे करते हैं तो you will going to feel the love the inside. presence of God. Watch over me. Okay. ये सुना हुआ है मैडम मैंने। हाँ, में कभी कभी बोलते हैं लोग ये प्रेयर। मास में बोलते हैं ना बहुत बार। मास में बोलते हैं। Yes. मुझे ये नहीं पता था इसको यूनिटी चर्च प्रेयर बोलते हैं। Yes, the might of God guides me. Yes, Mansi, you are saying something? The line after that, the power of God protect me. The presence of God watch over me. The mind of God guide me. The life of God flow through me. The law of God direct me. The power of God abides within me. Power of God Abides within me. The joy of God uplift me. मैडम माइट ऑफ गॉड गाइड मी के बाद आपने बोला था लाइफ ऑफ गॉड। इसके बाद लाइफ ऑफ गॉड फ्लो थ्रू मी. और उसके बाद विल ऑफ गॉड डायरेक्ट मी, राइट? उसके बाद मैंने बोला लॉ ऑफ गॉड डायरेक्ट मी. The power of God abides within me. The joy of God uplift me. The strength of God renew me. The beauty of God inspire me. Whatever is God, I am. This is actually I am affirmation भी बोलते हैं इसको कई लोग कि जो God है हम उसी को, हम भी वही हैं. मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देती हूँ, आपका जो कुछ रह गया आप नोट कर लीजिए. The light of God surround me. The love of God enfold me. The power of God protect me. The presence of God watch over me. The mind of God guide me. The life of God flow through me.
The law of God direct me. The power of God abides within me. The joy of God uplift me. The strength of God renew me. The beauty of God inspire me. Whatever I am, God is. Whatever I am. Whatever I am, God is. ठीक है. एक और जो लोग एंजल्स में बिलीव करते हैं वो आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल माइकल दी प्रोटेक्शन गार्जियन एंजल कहते हैं उन्हें. तो आप उनको भी स्पेशली इन्वोक कर सकते हो फॉर योर प्रोटेक्शन. ठीक है. इसके बाद जब हम कार्ड को चार्ज करते हैं, कार्ड को यूज करने से पहले उन्हें चार्ज करना और क्लीन करना बहुत जरूरी है. कार्ड को कैसे क्लीन और चार्ज करना है उसके बारे में हम बात करेंगे. कार्ड को जब एक बार चार्ज करने से पहले आपसे एक छोटी सी बात बोलूंगी कि जब हम कार्ड को रीडिंग कर लेते हैं तो क्योंकि हम इसे साइकिक एनर्जीज कहते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें अपने कार्ड्स की एनर्जीज को क्लीन करना जरूरी है. तो कैसे क्लीन करेंगे? हम क्या करेंगे, अपने डेक को, सपोज दिस इज अ टेबल, हम 3 बार ऐसे ठक ठक करते हैं विद द इंटेंशन कि जो भी इसमें स्टॉक अप एनर्जीज हैं वो रिलीज हो जाए. ठीक है. जैसे क्योंकि कार्ड्स को आप बार बार नहीं चार्ज करोगे. सपोज एक दिन में आप 5 लोगों की रीडिंग कर रहे हो तो एक रीडिंग खत्म करने के बाद आपको 3 बार ऐसे ऐसे करना है, ठक ठक ठक, एंड इंटेंट करना है कि इसके अंदर की जो स्टॉक एनर्जीज हैं वो रिलीज हो जाए और ये कार्ड्स दूसरे रीडिंग के लिए रेडी हो जाए. ठीक है. इनको क्लीन हम कई तरीके से कर सकते हैं. सबसे पहले मूनलाइट में विद द इंटेंशन टू जस्ट कीप योर कार्ड्स अंडर द मूनलाइट, कि ये सारे के सारे इसके अंदर की जो अनवांटेड साइकिक एनर्जीज हैं या नेगेटिव एनर्जीज हैं वो सारा मूनलाइट एब्सॉर्ब करते हैं. एट द सेम टाइम आप इनको वहां पर चार्ज भी कर सकते हो विद द इंटेंशन कि ये मूनलाइट से अपने आप को, मून की पॉजिटिव लाइट से अपने आप को चार्ज कर ले. दिस इज द बेस्ट एंड द इजीएस्ट वे ऑफ डूइंग दिस. ऐसा भी कर सकते हो कि सेलेनाइट आल्सो मैडम. yes you can use definitely. सेलेनाइट के ऊपर रख के भी आप क्लीन और चार्ज कर सकते हो. What is selenite? Selenite is a slate type of crystal. ऐसे चौड़ा सा स्लेट जैसा पीस होता है क्रिस्टल का, जो कि उसकी नेचुरल क्वालिटी होती है कि वो अंदर से नेगेटिविटी को एब्सॉर्ब करके पॉजिटिविटी से चार्ज कर देता है. तो आप अगर चाहो, आपके पास सेलेनाइट है, आप क्रिस्टल्स में डील करते हो, तो अपने कार्ड्स का डेक उसके ऊपर रख के, लाइक दिस इज अ सेलेनाइट, तो आप इसके ऊपर रख के विद इंटेंशन कि इसकी एनर्जी नेगेटिविटी एब्सॉर्ब हो जाए और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, वैसे भी कर सकते हो. आप एसेंशियल ऑयल बर्न कर सकते हो. अगर आप घर में एसेंशियल ऑयल इवेपोरेट करते हो तो उस इवेपोरेशन से भी अपने कार्ड्स को क्लीन कर सकते हो. या अगरबत्ती होती है, इंसेंस जिसे कहते हैं, अगरबत्ती का धुआं ऐसे निकल रहा है तो उस धुएं के ऊपर अपने कार्ड्स को ऐसे ऐसे विद द इंटेंशन कि ये पूरे क्लीन हो रहे हैं. पहली बार जब आप अपने कार्ड्स को यूज करेंगे तो हर एक कार्ड को अगरबत्ती के पास ऐसे ऐसे करके पूरा क्लीन करना ही करना है, क्योंकि वो जब आपके पास डेक आएगा पता नहीं कितने लोगों के हाथ से गुजरता हुआ आएगा, कितने लोगों के इमोशंस से गुजरता हुआ आएगा. तो इसलिए पहली बार तो आपको ये जरूर ही करना है. Madam, actually I've got this my deck cards to a friend. She has gifted me. तो इसके लिए I think I'll have to do the, because she was initially using it. अभी उन्होंने मुझे दे दिए वो कार्ड, अगर because she's not even if using the cards now. So is it Okay. okay to use it? it is completely okay to use them. Just it is important to clean them properly before using तो and आपने जो charge. बोला तो हाँ, even अगर incense. इंसेंस से भी हो जाते हैं, राइट? इंसेंस से हो जाएगा. बर्न करते हैं. कैम्फर से ज्यादा अच्छा है कि आप सैंडलवुड इंसेंस में, सैंडलवुड इंसेंस की ग्रीन एनर्जीज होती हैं जिसमें कैपेबिलिटीज होती हैं कि वो आपके कार्ड को थॉरली क्लीन करते हैं. सो इट इज एडवाइजेबल कि सैंडलवुड इंसेंस से आप करें. या आपके पास कोई और क्रिस्टल है तो उसको उसके ऊपर रख के भी, लाइक जो क्लीनिंग क्रिस्टल, प्रोटेक्टिंग क्रिस्टल्स होते हैं, कौन से होते हैं क्लीनिंग और प्रोटेक्टिंग क्रिस्टल्स? मेरे पास ब्लैक टर्मोलाइन है.
टर्मोलाइन है एंड स्मोकी क्वार्ट्स भी आप यूज कर सकते हैं, एंड 1 आपने नाम लिया सेलेनाइट का। आप लोग चाहो तो इन क्रिस्टल्स के नाम लिख सकते हो। ये क्रिस्टल कई सारे फॉर्म में आते हैं। सपोज आपका ये मेरा माउस जो है ब्लैक टर्मोलिन है, तो मैं इसके ऊपर रखूंगी और ये इंटेंट करूंगी कि ये टर्मोलिन सारा इसकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर ले। तो ये दिस इज अनदर वन ऑफ द वे ऑफ क्लीनिंग योर crystals. Ma'am, one thing I would like to ask, if I'll order card, same card I'm going to get the card which you are having? Yes, you will. Definitely, if you want, I will share the link with you. Yeah. Amazon Please link, do ना? share. हाँ, Yeah. Amazon लिंक मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। Amazon में और लेकिन आप खुद भी चाहो तो 500 से लेके 1500 तक के में कई सारी वेराइटीज हैं। 700 750 वाला जो डेक आता है उसकी कंपैरेटिवली ओके क्वालिटी ऑफ द कार्ड्स है, एंड इनिशियली आप वही ले सकते हो। और ऐसा नहीं है कि एक डेक आपने खरीद लिया तो इसी पे आप काम करने वाले हो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। So Like my cards are definitely. somewhat similar to your cards. Blue color के है, I think so. हाँ, so yes, you can always use मतलब bought from there. और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने प्रोटेक्शन के लिए क्रिस्टल साथ में रख सकते हो, ये मैंने आपको बताया ही। और एंड में आपको जब आपको डिस्कनेक्ट होना किसी की इमोशनल एनर्जी से बहुत जरूरी है, तो इसलिए आप जब किसी की रीडिंग खत्म कर देते हैं तो उसके बाद मेंटली आपको बोलना है कट कट कट, बस आपको कट 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 बोलना है। इस कट कट के बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे तरीकों से भी किया जाता है, बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस भी हैं इन दी टैरो कोर्स। जस्ट दैट्स इट, कट 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 आपको बोलना है, जिससे कि आप दूसरों के इमोशन से डिस्कनेक्ट हो जाए और डिटैचमेंट हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हमारे कितना भी लव वन क्यों ना हो, हमें डिटैच होना बहुत बहुत जरूरी होता है उसके साथ। आप लोग अगर चाहो तो रीडिंग करने से पहले, अगर हर बार होता है ना कि सबके अपने अपने तरीका होते हैं, बीइंग अ प्राणी के लिए ये हमारा पार्ट ऑफ हैबिट है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हम लोग इन्वोकेशन करते हैं। तो इन्वोक आप कर सकते हो सुप्रीम गॉड को, अपने गुरु को, अपने गाइड को, अपने टीचर को, जिसको भी आप इन्वोक करना चाहो। एंड दिस इज ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आस्क गॉड फॉर मेकिंग यू एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हीज और हर वॉइस, या उनकी जो एनर्जीज का इंस्ट्रूमेंट अगर आप अपने आप को बनाते हो तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग ऐसी होती है कि जो आपको खुद भी नहीं पता होता कि ये मैंने क्या बोला वाली बात होती है। तो इसलिए आप इन्वोकेशन को एक पार्ट करो, और हमेशा मेक इट अ हैबिट कि जब आपके कार्ड्स की रीडिंग हो जाए तो आप थैंक्स गिविंग भी करो कि भाई थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल रीडिंग सेक्शन। मेक इट अ लाइक, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट और बात आती है कि देखिए आज हमने टैरो कार्ड के बारे में नहीं बात करी, पर जो बातें हम कर रहे हैं ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है बिफोर इवन स्टार्टिंग डूइंग टैरो ना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें टैरो रीडिंग कब नहीं करनी चाहिए। बहुत तरह तरह के आपके पास बहुत तरह तरह के लोग आएंगे, बहुत तरह तरह की बातें करेंगे, पर उस केस में मैं आपसे सिर्फ ये बोलूंगी कि प्लीज यूज योर डिसर्नमेंट। क्या सही है क्या गलत है, भगवान ने हमें बुद्धि दी है, अपने डिसर्नमेंट को यूज करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जब आप बहुत टायर्ड हो, जब आप फिजिकली टायर्ड हो, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू डू टैरो रीडिंग फॉर अदर्स। अगर आप बहुत सैड या इमोशनल लाइक सैड हैं, शॉक्ड हैं, ओवर एंगर हैं, जब इस तरीके के स्ट्रॉन्ग इमोशंस हमारे ऊपर हावी होते हैं, तब हम केपेबल नहीं होते हैं एक स्टेट ऑफ माइंड रख के किसी के लिए रीडिंग करने के लिए। तो इस समय आपको टैरो रीडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपने किसी वजह से ड्रिंक की है, चाहे वो ऑकेजनल ड्रिंक ही क्यों ना हो, और इफ यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट एल्कोहल, देन प्लीज डोंट डू द टैरो रीडिंग। और किसी वजह से आपने कोई ड्रग या हेलुसिनेशन ड्रग लिया हुआ है किसी भी तरीके से, तो दैट इज नॉट द करेक्ट टाइम टू डू द रीडिंग। अगर आप किसी मेडिकेशन में हैं, आपकी फिजिकल बॉडी इल है और आप किसी लॉन्ग टर्म मेडिकेशन में चल रहे हैं, जिस मेडिकेशन के साइड इफेक्ट हैं, या जो मेडिकेशन आपकी फिजिकल बॉडी के ऊपर इफेक्ट करती है, लाइक कई सारी होती हैं जैसे दवाइयाँ खा के नींद आती है ना, तो इस तरीके की जो चीजें हैं उस समय भी आपको अवॉइड करना चाहिए। बेसिकली आपको मेंटली एंड फिजिकली फिट होना चाहिए अब जब आप किसी के लिए टैरो रीडिंग करते हैं।
एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मैम, ladies during the period cycle, can we do? If you are feeling fit and fine, that is a natural process, absolutely natural process to a lady. And if you are feeling fit and fine, you are not feeling sick or any exhausted, then you can do that. There is no harm doing that during that period also. एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें किसके लिए टैरो रीडिंग करनी चाहिए। तो मैं आपसे बोलूंगी, मेक इट अ रूल कि जो आपके सामने बैठा है आप उसके लिए टैरो रीडिंग करें। क्यों? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसके सामने साथ में बैठे हैं, सपोज हम लोग अभी एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं, जितने लोग भी स्क्रीन में एक दूसरे को दिखाई दे रहे हैं, सर्टेन वे से हम उनकी एनर्जी से कनेक्टेड हो गए हैं। और हम उनके कनेक्शन, जब हमारा किसी का 1 to 1 कनेक्शन मिलता है, जब हम हमारे कॉर्ड्स उसके साथ कनेक्ट होते हैं, तो हम उसकी फीलिंग को समझ पाते हैं, उसकी सिचुएशन को बेहतर समझ पाते हैं, बेहतर 1 to 1 कनेक्शन बना पाते हैं और बेहतर गाइडेंस दे पाते हैं। पर बहुत बार ऐसा होगा कि पेरेंट्स चाहेंगे अपने बच्चों के बारे में पूछना और वो कहेंगे कि हम उन्हें नहीं ला सकते। तो यस, इन दैट केस ट्राई टू, आप कैसे एनर्जेटिकली कनेक्ट हो सकते हैं? आप नाम सुन के हो सकते हैं, फोटो देखकर हो सकते हैं, एज जान के हो सकते हैं। तो कोई ना कोई कनेक्शन तो आपको बताना पड़ेगा। सपोज आपने फोटो देख ली, सबसे ईजी भी होता है फोटो देखने के बाद, जैसे हम एक दूसरे को अभी देख रहे हैं, तो हम एक सर्टन एनर्जी बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो जो फेसबुक पे टैरो रीडिंग होती हैं, तो आई एम नॉट वेरी फाउंड ऑफ दैट बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल लाइक ऑब्लिगेशन। मुझे कभी कभी करना पड़ता है ऑनलाइन टैरो रीडिंग, पर मैं आपको अभी बोल रही हूँ दैट इज 100% फेक। कोई एनर्जी कनेक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट वी आर जस्ट टेकिंग आउट कार्ड एंड जस्ट रीडिंग देम। सी, बहुत ही ऑनेस्टली मैं इस बात को कह रही हूँ, आप में से बहुत लोगों ने करवाई भी होगी। मेरे पास भी बहुत लोगों के फीडबैक आते हैं कि मैम आपने बताया था, अभी कल ही परसों किसी का आया था कि मैम आपने कहा था आपका घर तब तक बन जाएगा, बन गया। मुझे तो याद भी नहीं मैंने क्या बताया था, क्या नहीं बताया था, टू बी वेरी ट्रू, ऑनलाइन फेसबुक पे बैठ के। पर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, विद ग्रेटफुल हूं मैं कि भगवान ने मेरी प्रेडिक्शन को उनके लिए ठीक कर दिया। बट सी, जब आपका एनर्जी कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा, तो आप कितना सही करो। जैसे अभी मानसी वाज टॉकिंग अबाउट द एप्स। मानसी, आप खुद इस चीज को प्रैक्टिकली सोच के देखिए, वो जो ऐप है वो सबके लिए एक सर्टेन सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, वो आपके लिए कैसे सही हो सकता है एक पर्सनल बंदे के लिए? और अगर होता है तो मैं मान लेती हूँ 50% सही होता है। हर एक ऑकल्ट साइंस जो प्रिडिक्शन करती है वो 50% सबकी सही है, क्योंकि चीज या तो होगी या तो नहीं होगी, हो गई तो सच, नहीं होगी तो गलत। तो इसलिए 50% तो कोई भी करेक्ट है। सी, आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन पर्सनली, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। मैं जस्ट अपने व्यूज एक्सप्रेस कर रही हूँ कि दिस इज लाइक दिस। सो आप उनके लिए कर सकते हो। बहुत बार आप रिलेशनशिप में जब रिलेशनशिप ट्रबलसम रिलेशनशिप जब होगी, तब आपके पास जब टैरो रीडिंग के बारे में बात आएगी, तो मेरी एक आपसे सिंसियर एडवाइस है कि आप जो भी, चाहे वो मेल आया हो या फीमेल आया हो, वो सिर्फ अपनी ही बारे में बताएगा। उसके हिसाब से जो दूसरी सफरिंग का जो रीजन उनका स्पाउस है, वो तो उनको सुपर टॉर्चर कर रहा है, सुपर विलियन टाइप का आपको दिखाया जाएगा, है ना। तो इसलिए आप उनके लिए अलग से कार्ड निकालें, उस बंदे की बारे में ट्राई, उससे बोलो कि अच्छा आप अपने हस्बैंड की फोटो दिखाइए मुझे, और गिव हर और हिम सम टाइम, उसको एक्सप्लेन करने दो। वो जब इमोशनली थोड़ा सा हल्का हो जाएगा बोलने के बाद, उसके हस्बैंड की फोटो या उसके वाइफ की फोटो को देखो, उसके हिसाब से एनर्जेटिकली कनेक्ट हो, फिर कार्ड निकालो। फिर रिलेशनशिप रीडिंग इज अ डिफिकल्ट रीडिंग, रिलेशनशिप रीडिंग इज अ डिफिकल्ट रीडिंग, और बहुत क्या कहते हैं, बहुत ही नाजुक भी है बहुत, क्योंकि आप किसी की जिंदगी को अच्छा या बुरा कर सकते हैं। तो इसलिए उसमें बहुत ज्यादा आपको डिसर्नमेंट की जरूरत है। ठीक है, एक वन टाइम रिचुअल भी आप कर सकते हो, ये टोटली इंडियन रिचुअल है। टैरो इज ए वेस्टर्न साइंस, बट लेकिन द ब्यूटी ऑफ इंडिया कि इसमें अभी इसको भी हमने इंडियनाइज्ड कर दिया है। सो वन टाइम रिचुअल के बारे में हम बात करते हैं। एक छोटी सी, क्या करना है, जब हम अपने टैरो डेक है, इसमें हम एक
जब इन्हें हम चार्ज करते हैं तो विश लिस्ट बना लेते हैं कि हम टैरो से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हम इसे अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, वैसे कमाना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना। सी बी जेनरस टू योरसेल्फ, अपने आप से झूठ नहीं बोलना, हम लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। सी मैं तो नहीं कर हेल्प, लोगों की हेल्प होगी, इनडायरेक्ट होगी, पर मैं तो इसे प्रोफेशन बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं हजारों लोगों को टैरो पढ़ा दूं। सो अपने आप से झूठ नहीं बोलना है विश लिस्ट बनाने की, ठीक है। सो सच्चाई से अपने लिए एक विश लिस्ट बनानी है। उसमें आप जब आप उस विश लिस्ट में, जैसे एक वाइट पेपर पे आपने अपना लिख दिया, उसको 4 फोल्ड करने हैं। 4 फोल्ड मतलब रादर 2 फोल्ड उसे कहेंगे। कैसे दिखाऊं, मम्मी के घर में आज थोड़ा सामान की कमी है। यस ये एक पेपर है, ये 1 फोल्ड हो गया और इसको ऐसे करके 2 फोल्ड कर दिया, तो इसको हमने 4 को कर लिया। तो शी सेड लाइक दिस एंड दिस। तो 4 फोल्ड करके उसके ऊपर थोड़ी सी रोली और थोड़े से चावल, जैसे हम किसी भी चीज की पूजा करते हैं, वो लगा के मून लाइट में अपने कार्ड्स के नीचे रख दिया, ठीक है। और उसके साथ में घी का दिया जलाना है। इट्स लाइक नो एनी अदर ऑयल। घी का दिया अगेन इज अ वेरी हैव अ सर्टेन रिलीजियस सिग्निफिकेंस। सो आपको देशी घी का दिया जलाना है और उसको उसके साथ जला के पूरी रात के लिए मून नाइट में, स्पेशली फुल मून की नाइट में रख देना है। एंड ये मैंने इसको 1 टाइम रिचुअल इसलिए कहा है, ये आप लोगों की पर्सनल के लिए है। आप अगर किसी को एज अ रेमेडी देना चाहते हो, ये बहुत अच्छा काम करता है, बिलीव मी, बहुत अच्छा काम करता है जी। Since we have to do, once we have asked for card and our cards are in our hand, before doing the reading or before making use of it, we have to do this ritual. Like tomorrow I'm getting my cards and I'll be doing this tomorrow night, right? First you will get your cards, you Yeah. will clean them thoroughly, Yeah. you will charge them thoroughly, Yeah. and wait until next full moon, ठीक है। Make affirmation, wish list for yourself and use the cards energy on the full moon, then you are going to do that. Okay. And after this ritual, I'm going to use my cards. नहीं, you can use your card only after charging for your own wish list to For the full moon. Okay. I'll be doing that during Purnima. Got it. Okay. एक छोटी सी टिप आपको, आजकल हम सब लोग घर में सारा दिन बैठे रहते हैं और घर से वर्क फ्रॉम होम कर करके हम सब लोग थक गए हैं। हम सबकी ऑफिस की एनर्जी भी, एक्चुअली आजकल ना वर्क फ्रॉम होम नहीं है, सिर्फ वर्क है, होम तो बचा ही नहीं। तो होम इज नो वेयर तो इसलिए अपनी घर की एनर्जीज को क्लीन करने के लिए evaporate camphor in your place. See, that is going to clear all the heavy energies from your, especially at your workplace, जहां बैठ के आप काम कर रहे हो उस चीज जगह पे। अगर आपके पास कैम्फर नहीं है, then go for sandalwood इंसेंस, अगरबत्ती, वो जलाइए। अगर वो भी नहीं है तो रोजमेरी या पाइन की अगरबत्ती जलाइए। तो वो जलाने से डेली आप चलाइए और ओम चैंट करिए। एलेक्सा को बोल दीजिए ओम चैंट करती रहेगी 1 घंटे तक, 108 टाइम तक। तो ओम चैंट करने से भी आपके घर की हैवी एनर्जीज रिलीज हो जाएंगे। एंड दिस इज रियली इम्पोर्टेंट बिकॉज हम सब लोग घर में रह रहकर सब लोगों के टेम्परामेंट एक दूसरे से क्लैश हो रहे हैं बहुत जबरदस्त। इट इज रियली इम्पोर्टेंट कि अपने घर की एनर्जीज को हम क्लीन रखें, ठीक है। कार्ड्स को कैसे रखना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कार्ड्स को हमेशा सिल्क क्लॉथ में रखना चाहिए, सिल्क क्लॉथ में रखना चाहिए बिकॉज वो उसकी न्यूट्रल एनर्जीज होती हैं। और किस कलर के कपड़े में रखना चाहिए, टोटली अप टू यू। मैं आपको कौन सा कलर की क्या प्रॉपर्टी होती है वो बताऊंगी, आप अपने पसंद से रख सकते हो। हमेशा एडवाइजेबल है कि वुडन बॉक्स में आप अपने कार्ड्स को रखिए। कई सारे लोग वुडन बॉक्स में अपने कार्ड्स के साथ अपने क्रिस्टल्स भी रखते हैं कि क्रिस्टल लगातार उनको क्लीन करते रहेंगे, चार्ज करते रहेंगे। तो ये सारे रिचुअल्स आपकी खुद की पसंद के ऊपर है। मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे इतनी छोटी सी रोज क्वार्ट्ज की एंजल भेजी है एंड दैट एंजल इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ माई, मतलब वो मेरे कार्ड्स के साथ रहती है। पता नहीं वो जब से आई है उसकी एनर्जीज बहुत अच्छी है। तो इस तरह की कोई चीज आप जो आपकी पसंद है आप उसमें रख सकते हो, फेवरेट है आप रख सकते हो। तो दैट इज नॉट अ हार्म, क्योंकि आपको अपने कार्ड्स को अपना दोस्त बनाना है एक्चुअली। जी जी बोलिए।
Ma'am, one day can you show your angel to us? ओ श्योर, मैं अपने घर पे होंगी तो मैं जरूर दिखाऊंगी। Yeah. अभी मैं क्या बोलते हैं, Mama house. मॉमा's house, yes। तो इसलिए थोड़ा सा जो नीचे कपड़ा बिछा के हम कार्ड्स को पढ़ते हैं, उसके भी सर्टेन रिलेवेंस है। उसकी रिलेवेंस ये है कि हम कहीं पर भी अपने कार्ड्स को नहीं बिछा सकते, और कलर अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द कलर आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सपोज वाइट कलर का आप लेते हो, तो वाइट रिप्रेजेंट प्योरिटी एंड पीस, बट वी आर नॉट हियर टू स्प्रेड purity and peace with our cards, to be very true, to be very practical. But yes, my daughter selected white color cloth, that is her wish, पर आप उसे peace या प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज वाइट। येलो कलर जो है वो हीलिंग पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत सारे हीलर्स जो है वो अपने कार्ड्स को जो स्पेशली हेल्थ रीडिंग्स करते हैं वो येलो कलर स्प्रेड करते हैं। ऑरेंज कलर जो है वो फन या प्लेफुलनेस को करता है, और जनरली टैरो रीडर्स ऑरेंज कलर का कपड़ा नहीं यूज करते हैं। जो रेड कलर है, रेड कलर रिप्रेजेंट्स द मनी गेन, materialistic gain and realization of your thoughts. तो इसलिए रेड कलर बहुत बार मैक्सिमम लोगों को आप रेड कलर देखोगे, स्पेशली जो लोग प्रोफेशनल टैरो रीडर्स हैं। ग्रीन कलर अगेन प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, तो आप इनमें से जो चाहें आप यूज कर सकते हैं। ब्लू कलर रिप्रेजेंट्स द पीस। ब्लू मीन्स लाइटर साइड ऑफ ब्लू, नॉट द डार्कर साइड। डार्कर जो डार्क ब्लू कलर है, दैट इज नॉट अ गुड कलर टू हैव। ब्राउन कलर जो है वो प्रैक्टिकलिटी की तरफ इशारा करता है, अगेन नॉट एडवाइजेबल, दो इफ यू विश यू कैन। पर्पल कलर represents the intuition part, and definitely you need intuition while doing the tarot reading. ब्लैक जो कलर है वो कंप्लीशन का प्रतीक है, किसी चीज के फुल हो जाने, खत्म हो जाने का प्रतीक है। तो जनरली ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देखे जाते। आप इनमें से कोई भी कलर का क्लॉथ ले सकते हो। किसी भी सिल्क पाउच में अपने कार्ड्स को रख सकते हो। आई हैड मेड अ वेरी ब्यूटीफुल सिल्क पाउच। लाइक आपको याद है पुराने जमाने में हमारी दादी ऐसे कपड़ों में ना रामायण रखती थी, तो मैंने उनसे देख के छोटा पाउच मास्टर जी से बोल के फिर इसको बनाया और मैं इसमें रखती हूँ। So red and green is advisable. If you are take it forward as a professional Yeah, and definitely yes. ठीक है। सो कार्ड्स को कैसे ट्रीट करना है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यू नीड टू मेक योर कार्ड्स फ्रेंड्स। बहुत अच्छा, मैं हर क्लास में ये एग्जांपल देती हूँ, इस क्लास में भी ये दूंगी। आपने महाभारत में शकुनी के पास से देखे थे, वो उसकी बात सुनते थे। यू नीड टू मेक योर कार्ड्स लाइक शकुनी के पास से। कैसे भी कनेक्शन बनाओ, अपने कार्ड से कैसे भी कनेक्शन बनाओ, उनको अपना दोस्त बनाओ कि वो आपकी बात सुने, आपकी बात को समझें। मेरी डॉटर ने, मैं बहुत बार अपनी डॉटर का नाम ले चुकी हूँ, माई डॉटर इज अ 13-year-old गर्ल, एंड सो उसने अपने कार्ड्स को अपनी पिलो के नीचे रख दी थी। कहती वो रात में मेरे से बातें करते हैं। सी दिस इज हर वे ऑफ गेटिंग द कनेक्शन। यू कैन डेवलप योर ओन, बट डेफिनेटली आप उनको अपना दोस्त बनाएं, उनसे बातें करें, फील दी एनर्जी, कनेक्ट विद एनर्जी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी लाइक एडवाइजेबल वे कि आप उनको हाथ में लेके उनके साथ मेडिटेशन करें। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके ऑरास चक्रास ओपन होते हैं और आप इनकी एनर्जी में टैप इन कर सकते हैं। अभी तक आप में से कोई लोग मेडिटेशन अभी तक जिन्होंने पाथ नहीं लिया है, दिस इज द राइट टाइम टू चूज एनी ऑफ द मेडिटेशन पार्ट, विच एवर अट्रैक्ट्स यू, वॉट एवर। ठीक है, इट इज रियली इम्पोर्टेंट। इनको रीडिंग करते वक्त आपको इनको बहुत अच्छे से शफल करना है। ठीक है, सारी एनर्जीज को मतलब आप अपने कार्ड्स के साथ जितना अच्छा कनेक्शन बनाएंगे उतनी अच्छे रीडर आप बन पाएंगे। आप देखेंगे टैरो रीडर्स अपने कार्ड्स किसी को देते नहीं है, किसी को छूने तक नहीं देते, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि वो दूसरे की एनर्जी में टैप इन हो जाएंगे। एंड मतलब बीइंग अ एनर्जी हीलर, आई डू बिलीव इन दिस। सो आपको जैसे आपके लॉय आपके दोस्त ने आपको दिया है, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको बहुत अच्छे से क्लियर आउट करें, बहुत अच्छे से। एंड शो मी समडे इन द क्लास, आई विल स्कैन द एनर्जी वेदर दे आर रेडी फॉर यू और नॉट। एंड अगर और नहीं रेडी होंगे तो फिर आप उन्हें फर्दर क्लीन करिएगा। ठीक है, सो इट्स लाइक दैट। आई फील कि
Yes, yes. Yes, Mansi, yes, please come. I have a pink color cloth. Pink और Mhm. same ही होगा? नहीं, पिंक इज अ लविंग एनर्जी. अगर मैंने नहीं बताया तो पिंक इज अ लविंग एनर्जी. पर्पल इज अ स्पिरिचुअल और द इंट्यूशन एनर्जी. So उन्होंने मुझे पर्पल कलर में ही देके दिया था एक्चुअली. I think I can use मेरा that, right? मेरा सो यू हैव टू गेट ब्लू, है ना. अगर आपको प्रोफेशनली परस्यू करना है तो मेक इट रेड. Red, huh? Red or green. Red is again because that is the color of your root chakra also. So red is advisable. That is it. Yes, Maheshwari. I'm using yellow currently. Mhm. No, I have been like using yellow from beginning actually. If you're feeling like okay, well connected, go for it. Yeah, I'm well connected with it. I felt like very good. Whenever I Mhm. did a reading, like it came up very nicely. So Mhm. I've been doing, but I couldn't make it like more profitable or something like. So Then switch to you're red. saying, so red or green also is fine. Yeah, green is also fine. Green is actually growth, and red is prosperity. Oh, Green represent your heart chakra. You Uh-huh. are going to grow in the minds of many people. Mhm. Red is your basic chakra that is responsible for your materialistic gains. Okay. ठीक है? Yes, it's like that. Shuffle them well before using them. It is really important. Shuffle कैसे करना है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. प्लीज मुझे याद दिलाइएगा. क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं, ये 2 टॉपिक रह गए हैं आज की क्लास में. एंड इट्स ऑलमोस्ट 6, सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड नाउ. ट्रस्ट आपको आज की क्लास में कुछ एड ऑन जरूर मिला होगा, स्पेशली महेश्वरी एंड लॉय, नहीं महेश्वरी एंड मानसी, बिकॉज दे ऑलरेडी नो अबाउट टैरो. सो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मैंने एड ऑन किया, ऐसा मैं बिलीव करती हूँ, ट्रस्ट करती हूँ. नेक्स्ट फ्राइडे मिलेंगे 4:30. And please keep making your notes. And yes, one more important announcement. ये आपको recording मिल जाएगी. This recording will remain live for 3 days only. If you want to keep it further, you need to download and keep it. क्योंकि हमारे Zoom में automatically ये download हो जाएगी. उसके बाद आप मांगोगे भी तो भी मेरे को नहीं मिलता, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी. एंड एवरी क्लास इज डिफरेंट. अगर कोई दूसरा बैच होगा, उसकी क्लास होगी, तो मैंने जो आपसे जिस तरीके से बातें करी मुझे नहीं पता उस ग्रुप की एनर्जी कैसी होगी और मुझसे कैसे बात करूंगी. तो लाइक दैट. यस महेश्वरी. You said that you can check the card's energy if we show it. Do you want to check my card's energy? नो, नॉट लाइक दैट. This पूरे side. स्क्रीन में अच्छे से दिखाई देना चाहिए. Mhm. Front or back side? Anything. Front. Okay. अभी इनको यूज करने के बाद, चार्ज करने के बाद तो यूज किया है अभी. Yeah, I've been using it regularly. Yeah. अभी तो है एनर्जी. Mhm. अभी आप और 2-4 रीडिंग्स कर पाओगे, उसके बाद चार्ज करने की जरूरत. Okay. Okay. So the moon Full charge. moon. Yes, yes, full moon is coming. Yes. ठीक है. So thank you very much for Thank you bearing me very so much, long. ma'am. Thank you very much. God bless you Thank you, all. ma'am. Thank you. See you on next Friday. Bye. Thank you, ma'am. Thank Bye-bye. Bye. Bye, Mansi.